Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Hello and welcome everybody. Today we are going to learn a very interesting and important chapter, mineral and power resources. Now before we start, have you ever wondered how electricity lights up our homes, or how precious metals like gold, silver, or metals like iron or copper are obtained? Well, all these come from minerals and power resources which are found deep inside the earth. Minerals are natural substances that are dug out from the earth's crust. They are used in almost everything around us. From the construction of buildings, we use iron, to the electrical wires in which we use copper. They all are minerals. Power resources are, on the other hand, those sources that give us energy to run our machines, vehicles, and industries. For example, coal, petroleum, solar energy, natural gas, and another unconventional form these days, wind energy. By the end of this lesson, you will understand how these resources are formed, how we use them, and why we must use them wisely and carefully, because they are limited and take millions of years to form. Remember that minerals and power resources are precious gift of nature. So we must learn to conserve them, reuse them, and recycle them so that our future generations can also benefit from them. Let us begin this topic with a basic discussion given in your textbook. Here Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Dhanbad is in Jharkhand. Kiri was amazed to see that large areas were black. अब झारखंड है तो कोल माइनिंग एरिया है, हर जगह काला काला उसे दिखाई दे रहा था. Sukant, why is this place so black and dusty? They say it is because of the coal mines. So Dhanbad is famous for coal mines. If you ever get a chance to visit Dhanbad, you will see hundreds of trucks carrying the mineral coal. Now that we have come across the word mineral, let's understand what are minerals. Minerals are present throughout the earth's rocky crust. They are basically the naturally occurring substance. This is a picture of Dhanbad where you can see that this machine is loading the mineral coal into a truck. Let us now go ahead and define the mineral. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Question पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है. Basic definition of mineral: naturally occurring substance that has a definite chemical composition. Minerals are not evenly distributed over space. Rather, they are concentrated in a particular area or rock formation. ये हर जगह evenly नहीं मिलते, ये किसी एक जगह पर concentrated होते हैं या rock के form में present होते हैं. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean bed and Antarctica. Minerals की basic definition दी है, उनकी presence बताई है, और ये भी बताया है कि कुछ ऐसे भी minerals होते हैं जो इनएसेसिबल एरियाज में, जैसे आर्कटिक ओशन का बेड होता है, जैसे आर्कटिक ओशन के अगर आप बेस पर जाएं तो वहां पर भी हमें मिनरल्स मिलेंगे, अंटार्कटिका में भी हमें मिनरल्स मिलेंगे, जिनको कि अगर आपने एक्सट्रैक्ट कर भी लिया तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है.
तो उन्हें इनएसेसिबल मिनरल्स हम कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में, अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस से मतलब है कि अभी तक हमने आर्टिफिशियली मिनरल को क्रिएट करने में उतनी सक्सेस नहीं पाई है। इवन दो हमने कुछ मिनरल्स तो क्रिएट कर लिए हैं, बट इन जनरल मिनरल्स को हम ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्रिएट नहीं कर सकते, वो नेचुरली ही बनते हैं अंडर द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। आइडेंटिफिकेशन इनका करना है, सो दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर आ गया, टेक्सचर आ गया, डेंसिटी आ गया, हार्डनेस आ गया, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स। यहां पर बात कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी की। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। There are over 3000 different types of minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic मतलब metal form हो गए, non-metallic मतलब non-metal के form हो गए। छोटा सा एक चार्ट है minerals. There are two types, metallic and non-metallic. Now metallic are also of two types, ferrous and non-ferrous. Let us understand them one by one. मेटालिक मिनरल्स दे कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मतलब प्योर मेटल्स नहीं है, प्योरीफाई करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है। रॉ फॉर्म में मेटल्स प्रेजेंट है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस, वी नो, वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। They are hard substance, they are good conductor of heat and electricity, means they conduct heat and electricity, and they have a characteristic luster, they have shine, they have sonority, they have high temperature, high melting and boiling point. These are the characters of metallic minerals. Example, iron ore, bauxite. Bauxite is aluminium ore, इससे aluminium मिलता है। Manganese. These are some example. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Magnetic property की बात है। Ferrous जो होंगी magnetic property carry करते हैं। Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites. पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following are ferrous minerals? Ferrous minerals means they will carry magnetic properties, iron, manganese and chromite. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead. तो जहां एक तरफ ferrous minerals जो होते हैं उसमें आयरन या आयरन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और नॉन फेरस में आयरन प्रेजेंट नहीं है। आयरन के अलावा मेटल्स प्रेजेंट है, जैसे गोल्ड प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है। दैट विल बी मेटालिक नॉन फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसमें मेटल्स नहीं होते, दे डू नॉट कंटेन मेटल्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स के अलावा मिनरल फ्यूल्स भी हैं। The mineral fuels such as coal and petroleum, these are also non-metallic minerals. So coal and petroleum, natural gas, they are example, not natural gas, coal and petroleum, they are example of non-metallic minerals. Now speaking about the extraction of minerals, there are three major processes: mining, drilling and quarrying. Mining again is divided into two types: open cast mining and shaft mining. Let's understand all of them one by one. Mining, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. मिनरल्स को रॉक्स में से निकाल लेना, रॉक्स निकालना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको क्रश करना, वहां से मिनरल्स निकालना। ये मिनरल्स कहां पर है? अर्थ के सरफेस के अंदर। इसे माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, शैलो मतलब जो ज्यादा गहराई पर नहीं है, दे आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। सिर्फ ज्यादा गहराई पर आपको नहीं मिलेंगे, हार्डली 10 मीटर 20 मीटर पर वो मिल जाए, इतने भी नहीं एक्चुअली, 10 मीटर पर वो आपको मिल जाएंगे। तो बस ऊपर की लेयर हटाइए, आपको नीचे मिनरल्स दिखाई देने लगेंगे। ऐसे मिनरल्स को निकालने के लिए हम सिर्फ ऊपर की लेयर हटाते हैं और इसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मतलब ऊपर की लेयर हम हटा देते हैं और जो मिनरल हमें मिला हम उसे निकाल लेते हैं।
तो ये तो हो गए ऊपर की बात, लेकिन जो डीप में है, डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स, दे हैव टू बी मेड टू रीच द मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। तो अगर हमारा मिनरल बहुत नीचे है, 500 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे, 1 किलोमीटर नीचे, तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है, हमें शाफ्टिंग करनी पड़ती है, बोरिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद हम ये मिनरल्स निकाल पाते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो ऐसे मेटल्स जो ज्यादा डेप्थ पर है उनके लिए बोरिंग करके हम शाफ्ट एक अंदर डालते हैं और उससे हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट ड्रिलिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये अर्थ की सरफेस से बहुत ही ज्यादा नीचे है, और इनको निकालने के लिए डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। सो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कैसे निकाली जाएगी, ड्रिलिंग से निकाली जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड मेटल्स जो बहुत नीचे हैं कैसे निकाले जाएंगे, शाफ्ट माइनिंग से निकाले जाएंगे, इवन दो दोनों में बोरिंग का काम होगा। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। क्वेरिंग मतलब आपने कोई पहाड़ देखा, कई सारे रॉक्स हैं, पहाड़ से रॉक से बना हुआ, आपने देखा यहां तो कई सारा हमें लग रहा है मिनरल्स मिलेंगे, तो उसे तोड़ तोड़ कर हम निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ ड्रिलिंग। इस तरह से ये लोग ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ये निकाल रहे हैं। यहाँ पे लंबा सा देख सकते हैं, ये ड्रिल मशीन है, ये ड्रिल करेंगे एंड बाय दैट दे विल पिक आउट नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। Distribution of minerals. Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rock. Igneous rocks जो volcanic eruption से बनते हैं. Some in metamorphic rocks. Metamorphic rocks जो कि sedimentary rock जब अर्थ सरफेस के अंदर चले जाएं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। While other occur in sedimentary. Sedimentary rocks means जब igneous rock break down होते हैं तो sedimentary rocks बन जाते हैं, और sedimentary rocks ही आगे चल के metamorphic बन जाते हैं। So generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. Question पूछा जा सकता है कि metallic minerals हमें कहाँ से मिलेंगे, तो metallic minerals हमें मिलेंगे igneous rock से और metamorphic rock से। मोस्टली कहाँ पर मिलेंगे, प्लेट्यूज में मिलेंगे। एग्जाम्पल बताया, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। Further, sedimentary rock formations of plains and young fold mountains. Young fold mountains reminds us of Himalayas. They are the young fold mountains. They contain non-metallic minerals like limestone. तो sedimentary rock हमें क्या देगा, limestone देगा, non-metallic mineral देगा। Igneous rocks, metamorphic rocks हमें मेटालिक मिनरल्स देंगे, सेडिमेंट्री रॉक हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स देगा। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। कोल और पेट्रोलियम की बात हो रही है कि कोल और पेट्रोलियम भी जहां सेडिमेंट्री रॉक्स का लेवल होता है वहीं पर कोल और पेट्रोलियम भी हमें प्रेजेंट मिलेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड द टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। एशिया, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन। सबसे ज्यादा टिन का प्रोडक्शन एशिया में। China, Malaysia and Indonesia are among the world's largest tin producers. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. चाइना के बारे में तो चांसेस कम है, लेकिन इंडिया के बारे में टिन का पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कौन से ओर का है, तो टिन का है। एशिया also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper.
अब हर एक कॉन्टिनेंट में मोर और लेस सेम ही ओर्स मिलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ओर्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए आज तक इस टॉपिक पर डेडिकेटेडली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया अभी आप देखिएगा। अगला नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन्होंने बताया है कि अलग कॉन्टिनेंट में क्या प्रेजेंट है। यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पिक्चर से देखिए ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम मिलेगा। ये यहाँ पर आयरन और बॉक्साइट दोनों है। ये यहाँ ये कॉपर प्रेजेंट है। कॉपर प्रेजेंट है। अफ्रीका ये यहाँ आयरन प्रेजेंट है। सो यू कैन सी दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर पर क्वेश्चन हमें नहीं बनेगा क्योंकि कई सारे जगह देखिए ओवरलैपिंग चीजें, हर जगह कॉपर भी आपको लगभग हर जगह दिखाई देगा, बॉक्साइट भी आपको लगभग हर जगह, आयरन भी आपको हर जगह दिखाई देगा। ये पर्टिकुलरली जो पार्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कॉपर दिखाई देगा। लेट अस प्रोसीड। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? आयरन प्रोड्यूस हो रहा है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. इस पर क्वेश्चन ना तो पूछा गया है ना पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि ये सभी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सभी में कॉमनली आयरन प्रेजेंट है, निकेल प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है, जिंक सभी में कॉमनली प्रेजेंट है। तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि वो सभी के लिए बन रहा है आंसर, यूनिकली कुछ नहीं है। यहाँ पर यूरोप में ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा यूरोप में तो आयरन और सबसे ज़्यादा है। एशिया में सबसे ज़्यादा क्या था? तो टिन था, यहाँ पर आयरन है। आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। पहला कनेडियन रीजन, इट इज ऑन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। सेकेंड द एपेलॉचियन रीजन एंड थर्ड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ये 3 अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। कैनेडियन पार्ट में है, एपेलॉचियन रीजन में है और वेस्टर्न माउंटेन्स में। आयरन ओर है, निकेल है, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, कोल इन द एपेलॉचियन रीजन। वेस्टर्न मद्रास दे हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी देखो गोल्ड वेस्टर्न पार्ट में भी है, कनेडियन शील्ड रीजन में भी है, एपेलॉचियन रीजन में कोल। तब क्योंकि ये ना ओवरलैप हो रहे हैं तो चांसेस कम है कि आपको ये पूछ लें कि ये बताओ कि वेस्टर्न रेंजेस में क्या मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है क्या? बिल्कुल। तो गोल्ड तो हमें कनेडियन शील्ड में भी मिल रहा है। तो जनरली थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। आपने रेफरेंस बुक में क्वेश्चन जरूर इस पर मिलेंगे, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तो ओवरलैप कर रहा है। गोल्ड आप बोलेंगे सर गोल्ड तो कनेडियन रीजन में भी है, गोल्ड तो वेस्टर्न जोन में भी है। So that will be a contradictory kind of answer। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं टेक्स्ट बुक में भी उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछने के लिए तो ये पूछने के चांसेस कम है कि कहाँ पर क्या मिलेगा। हाँ, पर नॉर्थ अमेरिका में ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 3 जोन्स हैं। तो वो सिंपल है, कनेडियन रीजन है, ग्रेट लेक्स, कनेडियन रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स है, एपेलॉचियन है और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। लेट अस प्रोसीड। ये यहाँ पर एक पिक्चर में इन्होंने निकाल दिया। तो एंड ये आप देख सकते हैं, कोल एंड मिनरल ऑयल। तो अलग अलग लोकेशंस इनके क्या क्या है यहाँ बताया हुआ। साउथ अमेरिका। ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी आयरन ओर था, साउथ अमेरिका में भी ब्राजील में सबसे ज्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर आ रहा है। तो अब दोनों में कॉमन हो गया। यूरोप भी आंसर है, पूछा आयरन ओर सबसे ज्यादा कहां पर है तो यूरोप भी आंसर है, साउथ अमेरिका में ब्राजील भी आंसर है। इसलिए चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के कम रहेंगे। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। अब टिन अब एशिया में भी प्रोड्यूस हो रहा था, अभी तो ब्राजील और बोलिविया में भी, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी मैच हो रहा है। South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Coming to the next continent, Africa.
It is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. ये पूछा जा सकता है, डायमंड का सबसे रिचेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज अफ्रीका, साउथ अफ्रीका particularly Zimbabwe and Zaire. They produce a large portion of world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. Australia. Australia is the largest producer of bauxite in the world. पूछा जा सकता है, bauxite is the ore of aluminium. इससे एल्यूमिनियम बनता है, तो पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का. इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल. इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज. Kalgoorlie and Coolgardie. These are the areas of Western Australia that have the large deposits of gold. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा अलग नाम है इसीलिए. Kalgoorlie and Coolgardie, यहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं. रेस्ट बॉक्साइट. अंटार्कटिका. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. अंटार्कटिका बताया जा रहा है कि वो इतना हिडन है और इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं. सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड. ऐसा बताया गया है कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में आयरन है और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ईस्ट अंटार्कटिका में वहाँ पर ऐसे ऐसे हमें डिपॉजिट्स देखने को मिले. आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज. तो ये सारी भी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है. कमर्शियल मतलब इतनी ज़्यादा है कि उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, इंडस्ट्री के लेवल पे सेटअप किया जा सकता है. सो दीज आर, वी हैव कवर्ड द कॉन्टिनेंट्स. लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelers. जो अलग अलग पत्थर होते हैं, आपने देखा है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ज्वेल्स की, स्टोन्स की. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon, it is used in computer industry. It is obtained from quartz. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिलिकॉन, भाई जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है. कंप्यूटर इंडस्ट्री में खासकर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में खासकर. कहाँ से बनता है? क्वार्ट्ज से मिलता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट, बता दिया फाइनली. ये एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट ओर से मिलता है. इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर. अलग अलग जो उसके यूजेस हैं. अब इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो अकरेंस है वो तो कॉमन है, उस पर क्वेश्चन ही बन सकता, लेकिन यूजेस पर क्वेश्चन बन सकता है कि एल्युमिनियम का इसमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहीं से आप आंसर पिकअप करेंगे. वैसे तो उनके 50 और अलग अलग जगह जो टेक्स्ट बुक में है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मतलब अगर एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि बनने में thousands of years लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब एक बार गया तो ये चला जाएगा. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. तो हम जिस रेट से यूज़ कर रहे हैं और जो इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन है उनमें बहुत बड़ा गैप है. तो इसीलिए अगर हमने इसको ठीक से कंजर्व नहीं किया, इसको प्रिजर्व नहीं किया, तो इसको दोबारा बनने में जो टाइम लगता है इट इज़ ऑलमोस्ट, इसको नॉन रिन्यूएबल बताया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. तो पहला बताया कि वेस्टेज नहीं करना है, दूसरा बताया रिसाइकल करना है और तीसरा रीयूज करना है. Power supply. Let us now talk about the power resources. Now talking about the power resources. Now in today's fast-paced life, we feel that life in the cities may be more comfortable. But it is heavily dependent more and more on the gadgets which consume energy. And it has led to a wide gap between the demand and the supply. The meaning of gap
or rather wide gap between demand and supply, you see how the prices are increasing. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. And power and energy play a vital role in our lives. Rather than day-to-day life, we also need power for industry, agriculture, transportation, communication, defense, and etc. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Let us see what is the meaning of conventional and what is the meaning of non-conventional. Conventional means something which we are using from a very long time. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Example, firewood, fossil fuels. These are the two main conventional energy sources. Firewood. It is widely used for cooking and heating. लकड़ी की बात हो रही है. In our country, more than 50% of energy used by villagers, it comes from firewood. तो गांव में आज भी लकड़ियों का ही यूज़ हो रहा है, चाहे वो खाना बनाने की बात हो या वो और कोई चीज़ करनी हो, तो लकड़ियों का यूज़ होता है. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into fossil fuels. फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन बताई हुई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या है फॉसिल फ्यूल? प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन जो बरी हो गए मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, वो हीट से मतलब टेम्परेचर से और प्रेशर से किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. दैट इज द डेफिनेशन. अ बेसिक चार्ट टू अंडरस्टैंड. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लेडी कैरिंग द फायरवुड. Talking about the firewood, the reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So they are likely to be exhausted soon. तो जिस रेट से हम इसे यूज कर रहे हैं जल्दी ही ये खत्म हो जाएंगे. Next is the coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel. It is used in steam engines and it is also used to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. Question पूछा जा सकता है, thermal power किससे प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो कोल से प्रोड्यूस किया जाता है. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred as buried sunshine. Next, the leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing areas of India: Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. Jharkhand is the leading producer of coal in India. Other than Jharkhand, it is Chhattisgarh and Odisha. Talking about the petroleum, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. तो साइकिल में जो हम तेल डालते हैं और जो कार में हम जो पेट्रोल डालते हैं, ये सभी ब्लैक लिक्विड पेट्रोलियम से आता है. इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. ड्रिलिंग करके इसे निकाला जाता है, कोस्टल एरियाज में ये पाया जाता है रॉक्स के बीच में. दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज. ये जो इम्प्योर हम जो रॉ पेट्रोलियम निकालते हैं इसे रिफाइनरी भेजा जाता है, विच प्रोसेसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं पेट्रोलियम से देखिएगा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स.
Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. पेट्रोलियम और उनके डेरिवेटिव्स को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, कमर्शियल यूज़ है. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर. द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबॉय इन आसाम. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आसाम में डिगबॉय, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. तो इंडिया में भी पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर मिलता है बताया हुआ है, आसाम में, बॉम्बे हाई में और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टाज में. यू कैन सी दिस पिक्चर एक्चुअली ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट इज द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. तो जहां पर पेट्रोलियम मिलेगा वहीं नेचुरल गैस भी मिलेगा. एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. जब क्रूड ऑयल को हम नीचे से ऊपर लाते हैं तब ये गैस रिलीज होती है. इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल. नेचुरल गैस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स विथ डाइवर्स यूजेस. क्लीन एनर्जी मतलब पेट्रोलियम को जब हम यूज करते हैं तो कई सारे पॉल्यूटेंट गैसेस भी निकलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, पर नेचुरल गैस में ऐसा नहीं है. उसमें ऐसी भी कोई भी हार्मफुल गैस नहीं है, इसीलिए उसे क्लीन एनर्जी कहा गया है. इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड ऑल्सो एज अ कुकिंग फ्यूल. नेचुरल गैस की सारी यूजेस बताई हुई है. कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन है आइए देखेंगे. ग्लोबली यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस. इन इंडिया द मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड आसाम. तो इंडिया में इन प्लेसेस पर नेचुरल गैस नेचुरली प्रेजेंट है. The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to the depletion of oil reserves at an alarming rate. अब जिस तरह से हम इनका कंजम्पशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम इनका यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, इसलिए तेजी से खत्म हो रहे हैं. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. कई तरह की बीमारियां भी होती हैं भाई जब इनको हम बर्न करते हैं तो कई तरह के ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं विच इज हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनवायरनमेंट. Talking about natural gas, it is abundant and it is the cleanest hydrocarbon, producing around half the carbon dioxide and just 1/10 of the air pollutants of coal when burned to generate electricity. तो natural gas और coal का comparison बताया हुआ है. ये कार्बन डाइऑक्साइड आधा और जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जस्ट 1/10 प्रोड्यूस होते हैं. Natural gas can help to support renewable or non-conventional sources of energy as cleaner alternative to fossil fuels. So natural gas को हम replace कर सकते हैं. fossil fuels की जगह हम natural gas को use करें तो environment के लिए भी अच्छा है और इनके conservation के लिए भी अच्छा है. Using natural gas can help to bridge the journey of moving from fossil fuels to clean energy resources. वही बात कर रहे हैं कि अगर हम नेचुरल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ थोड़ा कम होगा और क्योंकि नेचुरल गैस से पॉल्यूशन थोड़ा कम है तो ये हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है. हाइडल पावर. रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स. डैम में जो रेन वाटर या जो रिवर वाटर हम स्टोर कर लेते हैं डैम्स के अंदर और जब हम इसे एक हाइट से गिराते हैं, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम. द मूविंग, अच्छा अभी हाइट से आप पानी गिराएंगे, नीचे टर्बाइन लगा देंगे, टर्बाइन में ब्लेड लगी हुई. द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जब आपने हाइट से पानी गिराया उससे ब्लेड मूव हुई, ब्लेड से जनरेटर मूव हुआ और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. पानी से पहले बिजली बन गई और उसके बाद उस पानी को हमने इरिगेशन के लिए यूज कर लिया, फार्मिंग में यूज हो गया. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 1/4 मीन्स 25% हम हाइडल पावर से, जो डैम में हम पानी स्टोर कर लेते हैं उससे हम पहले बिजली बना लेते हैं
और उसके बाद इरिगेशन कर लेते हैं, तो इससे 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, प्रोनाउंस्ड प्राग, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, सतलज रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हम वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर रहे हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ये पानी हमने ऊपर स्टोर कर लिया, फिर हमने पानी को नीचे गिराया। ये टरबाइन देख सकते हैं आप, यहाँ पर टरबाइन बना हुआ है, टरबाइन के ब्लेड्स घूमेंगे, टरबाइन के ब्लेड इस जनरेटर से कनेक्टेड है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देखिए अब आप पास हो रही है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल के बाद अब बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट शॉर्टेज। हम तो फॉसिल फ्यूल को हम बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं, अनलिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उसकी कमी हो रही है। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuel will get exhausted। कि अगर हम इसी तरह इसको इसी रेट पर यूज करते रहे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। Moreover, their use also causes environmental pollution। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेड प्रोड्यूस होता है, कई सारे डेंजरस गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं प्रोड्यूस होते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल की बात की जो अब यूज हम करने लगे, नए नए यूज हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एंड दीज आर रिन्यूएबल ऑल्सो। डबल फायदा है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं है, रिन्यू भी कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, लेट्स स्टार्ट। Sun's heat and light energy can be felt by us every day। सनलाइट है, सन की हीट है, जो लाइट एनर्जी है, इसको हम रोज फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब सन से आने वाली जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सोलर सेल्स में ट्रैप कर सकते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कि भाई दिन में जो सनलाइट आई उसे सोलर सेल्स बना लिए, उसमें स्टोर कर लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके रात को यूज़ किया। तो बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है आजकल। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ अबंडेंट सनशाइन। ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब उन कंट्रीज की बात हो रही है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहे हैं। अब क्योंकि इनको स्ट्रेट सनलाइट मिलती है तो ये बहुत सारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर। सोलर हीटर मतलब पानी गर्म करने का काम कर सकते हैं, आप कोई चीज़ गर्म करने का काम कर सकते हैं। सोलर कुकर खाना बना सकते हैं। सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज्ड कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो आप देखिए रहे हैं आजकल तो बहुत सारी जगह ऐसा कॉमन यूज़ हो गया है कि भाई लाइटिंग वगैरह के लिए वो सोलर सेल्स का ही यूज़ करते हैं। सोलर सेल लगा देते हैं, वो दिन में सोलर लाइट एब्जॉर्ब करता है, रात में आपको हीट देता है, सॉरी लाइट देता है। नेक्स्ट अनकन्वेंशनल सोर्स इज विंड एनर्जी। नाउ वी नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्लास 7th में हमने विंड के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है और समझा है। मूविंग एयर को विंड कहते हैं। अब विंड इज अ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Windmills have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial। अच्छा, बहुत पुराने ज़माने में, हमें पता भी नहीं है तब से हम विंड मिल्स को यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए। आदिकाल से इनका यूज़ कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं टाइम्स इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल्स which is connected to a generator to produce electricity। अब आजकल के टाइम में हमने क्या किया, हमने विंड मिल्स बनाए। विंड मिल विंड से रोटेट होते हैं और इन विंड मिल को हमने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। जब विंड मिल घूमेंगे हवा से, विंड से, तो वो जनरेटर में कनेक्टेड है, जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द विंड एनर्जी।
लेट्स टॉक अबाउट अनदर नॉन कन्वेंशनल, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी। Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atom of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। बता रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर पावर, ये न्यूक्लियर पावर हमें कहाँ मिलती है, ये हमें, ये एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है जो एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है। और कई ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनसे हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है। कैसे मिलती है? दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जब हमें मिलती है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फिशन होता है। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इनका न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, चेन रिएक्शन चलती है, उससे अनलिमिटेड एनर्जी बनती है। सो दीज फ्यूल्स, फ्यूल्स मतलब ये यूरेनियम और थोरियम, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस अंडरगो करते हैं। कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो आप बोलेंगे भाई जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ही करना है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही रिएक्शन कर दो, बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। मिल तो जाएगी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी होगी जो बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी, ये चेन रिएक्शन चलती है, कभी बंद ही नहीं होगी वो, तो इतनी देर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे हम कंट्रोल्ड फॉर्म में उससे एनर्जी निकालते हैं। So these fuels, they undergo nuclear fission in nuclear reactors and they emit power. The greatest producers of nuclear powers are USA and Europe। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर यहाँ पर बनाया जाता है। In India, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। झारखंड में थोरियम भी मिलता है, तो वो भी रेडियो एक्टिव है। राजस्थान में और झारखंड में हमें यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पाया जाता है। इवन दो इंडिया में यूरेनियम का यूरेनियम 238 फॉर्म मिलता है, आइसोटोप है, और जो एक्चुअल यूरेनियम है, जो कि रेडियो एक्टिव पावर जिसके पास बहुत ज़्यादा है, वो यूरेनियम 235 है। तो हमारे पास 235 वाला नहीं है, हमारे पास 238 है, और हम इस 235 को 238 में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बट स्टिल मैनेजेबल। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थोरियम इंडिया में कहाँ मिलता है? मोनोजाइट सैंड्स में मिलता है, केरला में मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पक्कम इन तमिलनाडु। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है। वैसे तो आप रेफरेंस बुक देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट दे दी है कि कहाँ कहाँ पर है। देखिए गुजरात में कहाँ पर है, खारापुर में है, और नरोरा में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर, लेकिन हमें एग्जाम में वही आएगा जो यहाँ पर दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। तो कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका, इससे बाहर नहीं आएगा। कई बार इस पर क्वेश्चन आया, पर इसी में से आया। लोग ढूंढते रह गए कहाँ से है, तो रेफरेंस बुक उठा रहे हैं, तो अभी रट्टा मार रहे हैं कि हाँ ये 15-20 स्टेट है तो सबके याद कर लो। आएंगे बस इतने ही, दैट्स ऑल। आप याद करना है, करते रहिए। क्वेश्चन अगर पावर प्लांट कहाँ पूछा गया तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी, वेव्स। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल के बारे में बात करेंगे। टाइडल एनर्जी जो वेव से बनती है। नाउ हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है, वी नो, हमें ये बात पता है कि सनलाइट अर्थ पे आती है और अर्थ उस लाइट को, उस हीट को रेडिएट करता है, तो अर्थ भी गर्म हो जाता है। तो अर्थ से जो हीट एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? इट इज द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडिली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, they say that every 30 किलोमीटर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है अंदर नीचे आप जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और जब कभी कभी जो हमारे अर्थ के अंदर की जो हीट एनर्जी है वो हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आती है। गीजर बोलते हैं उनको। ज़मीन के अंदर से गर्म हवा निकलती है, इसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं।
दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इसी हीट एनर्जी से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये छोटा सा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का एक फोटो बनाया हुआ है, तो कैसे उससे न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन से टरबाइन हम रोटेट कर रहे हैं, जनरेटर लगा हुआ है और इससे इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं। द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plant, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आगे पूछा जा सकता है कि इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश मणिकरण हाइट पर है, ये माउंटेन में, और पूगा वैली इन लद्दाख। फाइनली टाइडल एनर्जी, the energy generated from the tides, both low and high tide, it is called tidal energy. It is openings of the sea. During high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. जब हाई टाइड आते हैं तो हाई टाइड के साथ हमने टरबाइन जोड़ दिया, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, रशिया में, फ्रांस में और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में। फाइनली द बायोगैस। बायोगैस को समझें तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल वेस्ट मटीरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल लाइक बायोगैस। तो बायोगैस किससे बनता है? ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, डेड प्लांट से, एनिमल मटीरियल से, एनिमल डंग से, किचन वेस्ट से, और इसे हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं जो बायोगैस कहलाती। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत पहले क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है कि बायोगैस किस चीज़ का मिक्सचर है, उसमें कौन सी गैस है, तो उसमें मीथेन गैस है। केमिकल फॉर्मूला CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यू नो CO2। तो ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको बैक्टीरिया के हेल्प से हम और ज़्यादा डिकम्पोज करते हैं, उससे बायोगैस निकलती है। बायोगैस इज अ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। ऑर्गेनिक तो इससे बायोगैस तो मिल ही रही है, मैन्योर भी मिल रहा है, फार्मिंग में भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। So we see that energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. एनर्जी है तो हर चीज़ में एनर्जी है। टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, लेकिन इसको निकालना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कॉस्टली भी है क्योंकि इक्विपमेंट्स चाहिए। Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है बायोगैस का। स्लरी मतलब यहाँ पर हम ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, ये गैस टैंक है, यहाँ बैक्टीरिया डाले हुए हैं और यहाँ से हम बायोगैस और मैन्योर निकाल लेते हैं। टाइडल एनर्जी, यहाँ आप देख सकते हैं टाइड्स आ रहे हैं, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन इनको मूव करेगा, जनरेटर मूव होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बहुत लो टाइड हो हाई टाइड हो। तो जनरली हाई टाइड से हम इसे बनाते हैं। दैट इज द चैप्टर ऑन मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। एक क्वेश्चन इस चैप्टर पर जरूर पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। RMS में एक क्वेश्चन होगा, सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन होगा।